कोशिश कर रहे हैं उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ. We've just heard a devastating critique of the implementation of the RTE Act already, and it is indeed both disturbing and disconcerting to find, which I suppose many of us have realized over the last few years, that fighting for progressive legislation and achieving even an impartially good legislation is just the beginning of the struggle. और आंदोलन जो है वो ज़्यादा उसी वक्त होती है जब ये लॉ पास हो जाती है, उसके बाद ही काम शुरू होती है. और उसके बाद की जो मॉनिटरिंग है, इसको ही लेकर हमारी फ़िलहाल की जो समस्याएं हैं, हमें लगता है, कभी कभी लगता है कि ये असंभव है. इतने सारे कठिनाइयाँ हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हम आगे इसको कैसे लें. मुझे लगता है कि आज की जो मीटिंग है ये ज़्यादा सफल होगी अगर हम कुछ चीज़ें को लेकर सोचें कि हम किस चीज़ के लिए लड़ें, हमारी मांगें क्या होनी चाहिए. आई थिंक वी शुड रियली ट्राई एंड आइडेंटिफाई द वेरी स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी शुड रेज डिमांड्स इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, because I think many people here are fully aware of the problems. And of course, it's very important to know some problems in more detail so that we can make specific recommendations, but we must also think of the strategies to make these things better. And I think that I really believe that this is a very valuable report because it has identified some of those areas where we need the strategies very, very clearly. It's very clear from what has happened. Supposing we look at the issue of the RTE from the point of view of quantity, quality, and access. Quantity in terms of the sheer availability of the schooling process and all the attendant attributes of the schooling process. It's not just the fact of a physical school, but all the facilities that go with it, and of course the teachers and everything else. So the quality is critically dependent also on not just resources, but a range of other things. And of course, access, which has been very brilliantly covered in this report in terms of the diverse requirements of different categories of students. मुझे लगता है कि इन तीन चीज़ों पे ही अगर हम सोचें तो तीन मोटी मोटी चीज़ें पे हमें ध्यान देनी चाहिए. सबसे पहले मुझे लगता है ये बात है रिसोर्सेज की, संसाधन की. Because we know that it's true that having resources is not enough, but it is absolutely essential. It's the minimum condition. You cannot get either adequate expansion or decent, minimally decent quality without a massive multiplication of the resources that are currently being provided. और ये जो आंकड़े दिए गए हैं कि बहुत मतलब लर्निंग लेवल आउटकम्स की और टीचर क्वालिटी की वगैरह वगैरह, ये एक इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ द इनएडिक्वेट रिसोर्सेज दैट हैव बीन पुट इन. तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे पहली मांग यही होगी कि अगर सरकार इस बात पे सीरियस है, अगर उनको RTE सचमुच करना है, तो बिना संसाधन की हो ही नहीं सकती. और ये संसाधन जो है कम से कम उनकी अपनी जो UPA 1 की जो प्रॉमिस थी of 6% of GDP spending on education, कम से कम ये तो पूरी करें. जो 8 साल पहले की जो उनकी प्रॉमिस थी, 9 साल पहले की प्रॉमिस थी, कम से कम उसको तो हम पूरी करें. That we have to expand the resources that are given to education because we cannot achieve any of these other things without that. मगर दूसरी बात है, एक निकलती है जो हमें जब हम नेशनल नॉलेज कमीशन में जब हम स्कूल एजुकेशन को देखे थे, ये हमें बहुत साफ साफ नज़र आई थी कि एक कारण है जो संसाधन जो आती है उसको पूरा न होने की, जो इस रिपोर्ट में भी साफ आया, जो अंजलि भी बहुत दिखा रही थी, that the proportion of money that is available and the amount that is actually spent, इसमें there's a big difference. And one very important reason for this is the inflexibility of the process. सर्व शिक्षा अभियान में जो norms हैं वो बहुत ही rigid हैं, और अभी जो बढ़ाया गया है सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा बढ़ाया गया है उसमें भी वही inflexibilities अभी तक हैं. So they are state wise inflexible. हर state में एक ही category होते हैं. You have to have the following amount spent to encourage female education, even where in Kerala girls' enrollment is higher than boys. You have only so much spending for certain types of infrastructure. You have various kinds of rigidities that massively reduce the ability of particular local situations to take the benefit of even enhanced resources. तो सबसे पहले संसाधन को बढ़ानी है, और उसके बाद ये संसाधन जो दी जाती है उसकी देने में बहुत सारे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए.
और तीसरी बात ये भी है कि फ़िलहाल हमारी सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज्ड है. Even at the state level, it's an extremely centralized system, and we have not created either the possibilities or the efficient ways of decentralizing it. RTE में है तो सही कि stakeholder committees, village education committees, etc. But इनकी जो capacities हैं, इनकी जो knowledge होनी चाहिए और इनको ठीक से चलाने की जो समय लगता है, the very fact that these are very time intensive requirements, these are very labor intensive requirements. It's not easy to actually have a village education committee or a stakeholder committee without a whole lot of enabling conditions. इनके लिए हमें क्या चाहिए, कैसे करना है, इसके लिए भी संसाधन देनी पड़ती है, इसके लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है, इसके लिए भी सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ चाहिए. ये भी हमें सोचनी है कि ये हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं. तो मुझे लगता है इन तीन जो मोटी मांगे हैं, हमें इन तीनों को भी सोचना चाहिए आगे RTE को सफल करने के लिए, ये सोचने के लिए. और मैं और दो चीज़ें को उठाना चाहूँगी जो पहले भी बोल चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि ये दो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं. एक है ये पूरी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात. अंजलि ने भी बताई और ये रिपोर्ट में भी बहुत सुंदर करके दिखाया गया है कि पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, द होल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैज़ बिन really ignored. It is very much the Cinderella, the stepsister of this whole process. And today's newspaper even has a report that the NCPRI grievance, she has had to leave. Kiran Bhatti's term has expired and there is currently nobody who is in charge of this process. Even while it was ongoing, it was completely underfunded and it's really not being taken seriously. मगर grievance redressal जो है वो एक ही हिस्सा है. और हम I would like to draw everyone's attention to the enormous issue of the school inspection system. I think that's the only one thing which this report, excellent report, has ignored. Because we have currently an existing school inspection system. It is opaque. It is, again, underfunded. It has, we really don't know the criteria which determine it. There are all kinds of corruptions within that system. There are huge possibilities of making the school inspection system a viable way of actually following what is going on. Filhal jo system hai, we have actually no data. And we really don't have even, we had made in the NKC a recommendation that all school inspection norms must be put up on the website, that every particular district, they must have the criteria whereby every school is judged, the frequency, every visit must be recorded, the criteria and the basis on which certain recommendations were made or certain judgments were passed must be put up on that website, must be publicly available, must be known to everyone कि क्यों उन्होंने ये दिया है या वो दिया है. These are, I think, because this is an ongoing system and because this is the basis on which various actual administrative decisions are made, including the closures of schools, including the mergers of schools, etc. We really need to focus on the school inspection system and make sure it is a genuine, transparent, accountable and efficient system. दूसरी बात टीचर ट्रेनिंग की है, जो बात बहुत कर चुके हैं लोग और हम सबको मालूम है that teacher training is in a big crisis in this country. The privatization of teacher training is one of the many disasters of the higher education system. पिछले 10 साल में इतना privatize हो चुका है in almost every state and we all know the quality. It has been talked about here. What do we do now with this system which is in a big mess? One of the ways to do it is to say, अच्छा चलो reduce the norms. क्योंकि इतने सारे हैं हमारे पास, अब क्या करेंगे, कुछ तो करना है. We have got people who are paid money and supposedly got trained and we have schools which are missing teachers, कुछ तो करना है. That is one way, is to say let us lower the norms. But I think we have to embark on a massive program of teacher training, both pre-employment and during employment. And we have completely missed out on this process. The diets are of course massively underfunded, जैसे कहा गया है रिपोर्ट में, मगर जो ongoing teacher training होनी चाहिए, जो हर टीचर को चांस मिलनी चाहिए to develop their skills, to take them forward, to make their skills more relevant to the students,
ये जो बात है ये हम बहुत इग्नोर कर चुके हैं, और इसके लिए भी संसाधन बहुत ज़रूरी है. वी डू नॉट पुट इनफ पब्लिक मनी into teacher education either pre-employment or during employment, post-employment. और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें बिल्कुल आगे के लिए देखनी होगी. आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि one of the big problems of our school education system is that we really don't have the data. और शायद आप लोग सोचेंगे कि एकेडमिक्स की बस यही कहना है कि हमें और डेटा चाहिए हर बार, मगर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें नहीं, ये एक्टिविस्ट्स को भी चाहिए, ये टीचर्स को भी चाहिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी. द एक्चुअल ट्रैकिंग ऑफ एवरी चाइल्ड, it's very important. The actual, and I don't mean this in the biometric fingerprinted way of tracking. I mean we must know where every child in the country is, where they are located, what is this access they have to a school, why they are going to school or not, why they left. That kind of sensitive tracking is something which is absolutely essential. Our data systems are not geared to that. We have surveys which tell us broad idea, in so-and-so area, this look, approximately so many children go to school. We have other surveys which look at schools. We have various interconnected data that gives us a broad sense, but we do not have individual tracking of children. Every good, positive example of a good school education system anywhere in the world has got the individual tracking of every child. And I think we must demand this. If we are serious about the right to education, we must demand that we know where every child in the country is, what are their situations, what are the conditions under which they have to go to school, and what is the nature of the school and the choices they are making, why they are forced to make these choices. मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं आगे ये आंदोलन को आगे ले जाने के लिए we have to think about the specific demands that we make at central and state levels. And we have to recognize that asking for the moon is not going to take us forward, but asking for very specific things may actually take this forward, so that perhaps next year we will get slightly better results than we have got from this year's outcome. बहुत धन्यवाद. Thank you very much for that, and we'll definitely look at making sure that we include the school inspection system. I think that's a very good point. And now to end this session, I would like to invite Medha Patkarji to address us on this issue of the right to education. Thank you. मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर, एस ईश्वरन जी, जयति घोष जी, अंजलि तनेजा जी, शिरीन जी, और जिनके कारण दबाव और प्रभाव में मैं यहाँ पहुँची गई, अमरीश राय जी, और आप सब यहाँ आए हुए विविध संस्था संगठनों के साथीगण. आई होप एवरीवन वुड अंडरस्टैंड हिंदी. There anyone who doesn't understand, kindly make arrangements for translation amongst yourself. दो चैनल से बोलने में समय ज़्यादा जाएगा, और शिरीन जी हम बैठे हुए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए और जयति जी को सुनते हुए यही बात मन में आई कि क्या शिक्षा के मुद्दे पर इस देश में आज एक जन आंदोलन जारी है? क्या शिक्षा के मुद्दे पर इस देश में एक सशक्त जन आंदोलन की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इतनी सारी लगन और कटिबद्धता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य में सक्रिय और कार्यरत रहे आप सब साथियों को इसके बारे में सोचना हर रोज़ हर दिन पड़ता होगा. और वो इसलिए कि शिक्षा जैसे एक बुनियादी मुद्दे पर, जो कि संवैधानिक अधिकार का मुद्दा भी है और सामाजिक विकास की अवधारणा में एक बुनियादी मुद्दा भी है, और व्यक्तिमत्व और विकास की जो भी संकल्पना आधुनिक और अत्याधुनिक परिप्रेक्ष्य में
भूमंडलीकरणवादी परिप्रेक्ष्य में भी रखी जा रही है, जिसके साथ न केवल समाजशास्त्रीय लेकिन अर्थशास्त्रीय और राजनीतिक अध्ययन और विश्लेषण जुड़े हुए हैं, उसके तहत भी शिक्षा एक बुनियादी आधार है, अगर हथियार नहीं है तो। और इसलिए शिक्षा के मुद्दे पर देश में हो क्या रहा है, ये इस सवाल का जवाब तो हम अलग अलग प्रकार से दे ही रहे हैं, जो मुझे लगता है कि केवल एक कानून या सरकार की सोच और नीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। आजकल हर मुद्दे पर सरकार, और खास करके यूपीए सरकार, इसमें माहिर दिखाई दे रही है। हर मुद्दे पर एक कानून तो ला रही है, लेकिन संविधान को कुचल रही है। और हर कानून पर फिर हम सब लोग, जो सिविल सोसाइटी के कहिए या नागरिक संगठनों के कहिए, जन आंदोलनों के कहिए, इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारा ध्यान देना पड़ रहा है कि उस कानून में हर वाक्य में और हर धारा में और हर शब्द में क्या है और क्या नहीं है। और हम लोग उसके पीछे लगते हुए सरकार तो कहीं ना कहीं निकल जा रही है। ये मुझे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, या फिर लोकपाल जन लोकपाल हो, इन तमाम कानूनों पर आज जो एक जन उभार है, उसका स्वागत करते हुए भी लग रहा है आपके सोचने के लिए ये बात छोड़ने। और इसीलिए हमारी बात, जो कि न केवल कोठारी आयोग से 46 वर्षों पहले की वह एक सैद्धांतिक दृष्टि और विचार से भी, बल्कि हमारे पीढ़ियों की ज्ञान विज्ञान कुशलता, क्या कहते हैं, शिक्षा, इस पूरे के बारे की सोच और इन सभी संकल्पनाओं में जो अंतर्विरोध या अंतर संबंध है, उसको लेकर शुरू होनी चाहिए। और वहाँ से जब बात शुरू करते हैं, तब शिक्षा की, मैं भी एक विद्यार्थी रही हूँ, मेरा मुख्य विषय वो रहा है, लेकिन ये दिखाई देता है कि शिक्षा में आज जो इतना कुछ हो रहा है, उसमें एक सूजे हुए शरीर जैसी कार्य तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन एक आत्मा खोती जा रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? जैसी बात माध्यमों की है, जैसी बात कई सारे मुद्दों की है। और इसीलिए शिक्षा के पूरे उद्देश्यों को अगर हम लोग एक व्यक्ति से लेकर समाज तक के निर्माण की बात करते हैं, तो मूल्यों से अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए उन मूल्यों की बात, जो कि हमारे आपस में भी अगर एक समान ढांचा को लेकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो वो समता, न्याय, सादगी, स्वावलंबन की होनी चाहिए। और वो व्यक्ति से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र और एक जगत तक। तो इस प्रकार से देखें तो इन मूल्यों को बाजू में रखकर या नज़रअंदाज करते हुए शिक्षा के भले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भले करिकुलर डेवलपमेंट हो, भले टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर बाकी सब शिक्षा संबंधित योजनाएं या प्रक्रियाएं हो, या भले और उसके लिए ज़रूरी वित्तीय संसाधनीय आधार की बात हो, वो सब खोखली दिखती है। और इसीलिए माफ़ करना, पर उसको लेकर हम लोगों को बहस करनी चाहिए। फिर से एक बार इस देश में और दुनिया में इस बहस की ज़रूरत है कि शिक्षा क्या दे रही है। और उसको लेकर जो अभी कहा कि शिक्षा यानी एक प्रकार का व्यवसाय, इस दृष्टि को आगे बढ़ावा देने के लिए अंबानी और बिरला को शिक्षा नीति बनाने की वो शुरुआत, या उसके बाद विश्व बैंक के पैसे के आधार पर डीपीईपी जैसे प्रोजेक्ट की शुरुआत, या हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, आजकल जो एक मिशन के नाम पर कुछ कमीशन ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इस प्रकार की एक आगे जाने की एक मर्यादित दिशा और दृष्टिकोण, जैसे कि योजनाओं के द्वारा ही पूरी प्रक्रिया का अमल करना है, ये बहुत खतरनाक बात मुझे लगती है। मुझे लगता है कम से कम हम सब लोग जो कि सोशल सेक्टर के माने जाते हैं, और प्रणब मुखर्जी जी ने इस बार बजट के लिए कंसल्टेशन के लिए बुलाया, तो यही कहा कि आप सब लोग सोशल सेक्टर के लिए, और अंत में कहा कि अब आपने तो कहा है, पर मुझे तो ऐसे दसों को सुनना पड़ता है, जबकि वो कॉरपोरेट सेक्टर को सबसे पहले सुनते हैं और हमको सबसे आखिरी सुनते हैं। ये मैंने देखा। इसलिए बना बनाया बजट होता है और उसको फाइनल करने के
वहाँ से निकल जा। तो ये जो हम लोग जो कम से कम सोशल सेक्टर के फिर भी माने जाते हैं, उनमें बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारे अंतर्विरोध भी होंगे, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं भी होगी जिनका सम्मान करना चाहिए, और अलग अलग संस्था की या संगठनात्मक प्रक्रियाएं और रणनीतियां भी होगी। लेकिन हम लोग अगर फिर भी एक बिरादरी के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस बिरादरी को इसका आग्रह रखना चाहिए कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, न केवल स्टैटिक यानी स्थायी, जो कि सरकार की योजना और कार्य और इससे ही जुड़ी हुई है, न स्टैटिस्ट यानी सरकार से ही सब कुछ अपेक्षा करने की और सरकार सब कुछ दे सकती है ये मानने की, और इसीलिए समाज के विविध तबकों का इसमें योगदान, ये हमारी बुनियादी रेखा होनी चाहिए। हम जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तक आते हैं तब बहुत सारे समय वो पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म्स और उसके रिपोर्ट्स, और उसमें फिर वो एक मीटिंग के लिए 200 रुपया और हर मीटिंग का रिपोर्ट चाहिए, मीटिंग हो न हो, इस प्रकार के मामले में उलझे जाते हैं, उलझाए जाते हैं। और इसके बदले में सही में समाज के इतने विभिन्न तबके जो शिक्षा की प्रक्रिया शुरू रखे हुए हैं, जो कि पूरे अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप ही नहीं घर के उद्योगों में, लेकिन कई प्रकार के व्यक्तिमत्व विकास, सामाजिक विकास के लिए तैयार करते जाते हैं, वो चाहे परिवार हो, चाहे वो समाज इर्द गिर्द का हो, और उनमें शिक्षक की भूमिका भी बहुत अलग अलग लोग निभाते हैं। इसको अधोरेखित करना चाहिए, और इसका एक अहंकार नहीं, अहम भाव नहीं, पर नम्रता के साथ आग्रह और कुछ हद तक सत्याग्रह भी होना चाहिए। और वो अगर हम रखते हैं तो सरकार के इस कानून की परीक्षा और परीक्षण विश्लेषण करते हुए भी उसमें वो बात पूर्ण रूप से खोई हुई है, ऐसा कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं आती। और जबकि शिक्षा जैसा एक क्षेत्र और शिक्षा जैसी एक प्रक्रिया, जिसमें जैसे कि युवाओं का ही लीजिए, इतने सारे देश के युवा और बेरोजगार युवा भी, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह नहीं, पर एक वॉलंटरी फोर्स, एक एजुकेटर्स फोर्स, एक पेडागोजी की थोड़ी कम अधिक समझ हो, ट्रेनिंग हो, या करते करते सीखते जाए, पढ़ते जाए, पर उनका उसमें सहभाग, उनको उसमें खींच के लाना, ये जो दृष्टि और एक नजरिया होना चाहिए, उसकी पूरी रूप से कमी जो भी शासकीय लेबल लेकर आता है, चाहे कानून हो चाहे योजना हो, उसमें दिखाई देती है। जो भर देना हमारा कर्तव्य है, न केवल कानून में एक क्लॉज जोड़कर, लेकिन अपने कार्यों में इसको समाते हुए। ये कहते हुए आगे बढ़ूं तो मुझे लगता है कि आज फिर भी शिक्षा के नाम पर जो बहुत कुछ चल रहा है, उसकी जो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 2-3 मुख्य बातें दिखाई देती है, जिसका जिक्र हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देती, कि वो 6% बजट नहीं अभी तक हुआ है और 3.7% ही हुआ है। ये एक बात बहुत कई लोगों को खटकती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, पर उसका हम लोगों को एक रिलेटिविटी, एक सापेक्ष रूप से उसकी सोच जरूरी है कि कौन से अन्य क्षेत्रों पर कितना पैसा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बांधों से लेकर शिक्षा तक सब कुछ डाला गया है, क्योंकि वो बहुत बढ़ावा देने की बात है, चाहे कमलनाथ हो चाहे और कोई हो, उनको वो एक अपना दायरा लगता है। लेकिन ये जो शिक्षा के जो संसाधनों की बात है, उसमें उनकी तुलना में इतना कम होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इससे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है, और उनके दृष्टि से इसको कोई महत्व नहीं दिखा। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो पीपीपी की बात ईश्वरन जी ने, बहुत प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अगर इतनी कड़ी स्पष्ट भूमिका लेती है तो और कुछ चाहिए ही नहीं। उनका आंदोलन जो होने वाला है वो इसमें बदलाव ज़रूर ला के रहेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। पर हर क्षेत्र में ये जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जो पीपीपी चल रहा है, वो इतना खतरनाक है कि वो सरकार को ख़त्म करने की बात है।
सरकार की तिजोरी भी खत्म कर रही है और सरकार को खत्म कर रही है। वो खनिज संपदा के बारे में भी है और बौद्धिक संपदा के बारे में भी है। और बौद्धिक संपदा वो पेटेंट वाली मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिक्षा का जो आधार है और शिक्षा से जो उभरती है, जो विकसित होती है, समृद्ध होती है, उस संपदा की बात कर रही हूँ। उसके बारे में भी सरकार अपना दायरा दूसरों के कंधे पर डाल रही है। इतना ही नहीं तो उसका पूरा मूल्यों की चौखट बदल रही है। इसीलिए पीपीपीज में शिक्षकों की नौकरी जाएगी ये मुद्दा नहीं है, तो कौन शिक्षा का दायरा, शिक्षा के मूल्य तय करने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ चित्र है। और वो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के बिल तक प्राइमरी शिक्षा से लेकर जो दिख रहा है उसको हमने कड़ा विरोध करना चाहिए। और इसलिए क्योंकि वो व्यापारी एक बाजारी तत्वों के हाथ में शिक्षा देना एक खतरनाक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव की पहल है। रिफॉर्म्स नहीं, केवल एक रिवोल्यूशनरी चेंज इसके कारण शिक्षा की तरफ देखने का और शिक्षा से जो पाना है या नहीं पाना है उसके बारे में आ रहा है। क्या यहाँ जो उपस्थित संस्थाएं हैं उनका इसके बारे में एक राय है? मुझे थोड़ी सी शंका आती है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर कड़ी चर्चा होकर इस पर एक स्पष्ट भूमिका लेने में एक दूसरे से आदान प्रदान से मदद करना बहुत ज़रूरी है। और वो इस कानून के आधार पर ही नहीं, अन्यथा भी। इसको देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं कि ये सरकार जो कि अपना दायरा से छुड़वा रही है, वो 3 से 6 के दरमियान के मार्गदर्शक सिद्धांत संविधान के जो थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो नॉन जस्टिसिएबल रखकर कि जिसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये रखते हुए ही पहली कमजोरी है जिसको दूर करना अब शिक्षा में भी और हर क्षेत्र में हमको ज़रूरी है। क्योंकि गैर बराबरी को दूर करना हो, शिक्षा में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, या मार्गदर्शक सिद्धांतों में सही में सरकार की जो भूमिका है एक ड्यूटी बाउंड स्टेट के रूप में, न केवल कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में, वेलफेयर स्टेट के रूप में, वो उन मार्गदर्शक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, जिससे ये बिल्कुल ही छुड़वाना चाहते हैं खुद को। और शिक्षा के इस कानून के तहत उन्होंने फिर से वो बात की है। और इसीलिए जो व्यापक नजरिया शिक्षा का परिप्रेक्ष्य का है वो 3 से 6 क्या 0 से 6 तक अगर अलग अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होता था, वो माँ की गर्भ से शुरू होने वाली बात और फिर बच्चों के आदिवासी क्षेत्रों के कुपोषण जैसे मुद्दे भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो शिक्षा पाने में या शिक्षा जारी रखने में या शिक्षा के बाद भी अपना योगदान देने में न देने में मदद रूप होते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये बात से सरकार ने अपना दायरा छुड़वाया है। मुझे लगता है उसको हम लोग इस प्रकार से रखना चाहिए कि शिक्षा की जो व्यापकता है उसको नज़रअंदाज करने की जो नई दृष्टि है, जो व्यापारी है, जो केवल एक सीमित है, उसका ही रिफ्लेक्शन इस प्रकार से किया है। इसलिए मैंने कहा कि कानून को लेकर केवल लड़ना ठीक नहीं, लेकिन कानून में सरकार की बदली हुई सोच जो रिफ्लेक्ट होती है, जो प्रतिबिंबित होती है, उसकी पोल खोल करने के लिए कानून बहुत काम आते हैं। अन्यथा इनके क्या चल रही है अंदर वो समझ में नहीं आता है, और उस दृष्टि से भी इसका एनालिसिस होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायरा उन्होंने छोड़ दिया है, जो जिसमें न केवल हमारे आदिवासी क्षेत्रों के सतपुड़ा और विंध्य के आश्रम शालाएँ आती हैं, पर मदरसाएँ भी आती हैं। तो इस देश की पूरी जो डाइवर्सिटी, जो विविधता है, जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, भाषाओं की है, माध्यमों की है, सामाजिक संस्थाओं की है, जो संस्थाएं मतलब NGOs नहीं तो एक कम्युनिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस, कहीं आदिवासी क्षेत्रों में कारभारी हो या मुंडा और मानकी भी हो, इस प्रकार की संस्थाओं की भी बात, जो उसको भी शिक्षा अपना एक कार्य क्षेत्र लगता है, उसको कैसे सरकार जोड़ लेने के, उससे उसको अपने से जोड़ने की बात नहीं, पर सरकार ने उनके साथ जोड़ना। कुछ वहां भी अंधश्रद्धाओं से लेकर राष्ट्रीय एकात्मता के विरोध की बात चल सकती है, इसलिए भी जरूरी है कि वो बुनियादी ढांचे के खिलाफ वहाँ कुछ न हो, पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाज का योगदान, जैसे एक नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद समाज दौड़ के जाता है और फिर राहत का काम करता है, सरकार से आगे बढ़ता है, शिक्षा में तो हर रोज हर दिन इस प्रकार का कार्य करने वाले सामाजिक समूहों का और समुदायों का सम्मान होना चाहिए, और वो इन्होंने इससे दायरे से एक प्रकार से छुड़ा हुआ है। दूसरी बात मुझे लगता है कि इसलिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन
जो पूरा बदल रहा है उसकी दखल लेते हुए ये प्राइवेटाइजेशन के बात पर हम लोगों को थोड़ा और गहराई से सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने नवनिर्माण अभियान के तहत जो जीवनशालाएं पिछले 22 सालों से चलाता आया है, वो एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स मानी जाएगी। महात्मा फुले ने हो, शाहू महाराज ने हो, या पेरियार ने हो, या और दुर्गाबाई देशमुख ने हो, या जुगतराम दवे जी ने हो, जो भी शालाएं और शिक्षाओं में न केवल प्रयोग लेकिन एक सृजनशीलता का कार्य किया, उसको भी निजी माना जाता था और माना जाएगा। लेकिन आज का प्राइवेटाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन, इसमें जो फर्क है उसको हमने अधोरेखित करना चाहिए। और नॉन एडेड स्कूल्स एक कैटेगरी में डालना इसीलिए खतरनाक है क्योंकि हमारे स्कूल्स भी नॉन एडेड स्कूल्स है। क्यों? क्योंकि मैं अभी कह रही 18 साल से हम मांग रहे, वो मान्यता ही नहीं दे रहे, अनुदान तो बात ही अलग। और फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप कॉर्पोरेट्स के पास जाओ या और विदेशी पैसे के पास जाओ, इसके अलावा के जो बचे ही